Good morning, all. Switch on your camera. Everyone should switch on their camera. Good morning, Shubham. Good morning, ma'am. Khan. Good morning, Rutuja. Nazneen, you should just switch on your camera. Tushar. Leena, Ayushi. Good morning, ma'am. Good morning. Everyone should, whenever you like join the class, you should switch on your camera once the faculty entered in the room. See, actually, you have paid the fees to understand this industry, okay? And all the faculties who will going to taught you or teach you have more than decade of experience. So they can tell you very in a well manner about the industry, okay? So you may have the chance to meet them because they are residing at Bangalore, Mumbai, Pune, and the rest of across the pan India. So you like now, if you want to meet anybody in clinical research industry or you want to talk person who is like working in this industry since last 10 years, is it possible that you can contact them? So this is the golden opportunity for you. Am I are you getting my point? लीना, और सबसे पहले आपको अटेंटिव रहना है क्लास में. आपको बात करनी है फैकल्टी से. अगर आप बात नहीं करोगे, आपको कुछ भी क्वेश्चंस अगर पूछते हैं, आप उसके या आंसर नहीं दे पाते हो या आप इंटरेक्ट नहीं करते हो, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन. माय नेम इज विजया भक्ति. आई एम अ डायरेक्टर ऑफ कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. I have 18 years of experience in clinical research industry. I have worked more than 25 clinical trials in endocrinology, gastroenterology, then ophthalmology, oncology. Almost in every segment I have worked from startup to close out. So for fresher, यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में. यू कैन ग्रैब एनीथिंग. I just want to tell you today's class is that बहुत बार स्टूडेंट जब इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, so we ask them, what do you know about the industry? They don't know anything. So what's the purpose to join this industry? Shubham, you are getting my my voice is clear. You are getting whatever I want to tell you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anything, if you are not getting, you just stop me, ask me. You can interrupt me any point of time whenever you are not getting. Okay, Ayushi, this is for all of you. Okay, so today's class, the purpose of today's class is that हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है. ओके, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हाँ, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एंड यू आर रोमिंग हेयर एंड देयर एंड all the every time many people you came across many people and everyone is telling different thing, so to whom you believe. okay, तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा ना कि अरे मुझे क्या करना चाहिए. सो फर्स्ट, as you are a fresher and looking for a job which would be or could be like a growth oriented. Growth oriented means like a designation wise, money wise, and like a future perspective. Whatever the inflation rate will be there, your salary should also match that inflation rate. Okay, मतलब महंगाई का जो रेट है उससे आपकी सैलरी मैच होनी चाहिए. सो फॉर दैट अभी से आपको प्रिपरेशन शुरू करना है. इट्स ऐसा है कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन में ही ये प्रिपरेशन करते हो तो आज शायद आपको ये कोर्स और ये टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता था. बट समहाउ तब आपको नहीं मिला होगा चांस, या आपको नहीं पता चला होगा कि कैसे आगे बढ़ना है. हर नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंस क्या है, नॉलेज का इम्पोर्टेंस क्या है, स्किल्स कौन से रिक्वायर होते हैं. सो ऑल दीज 3 थिंग्स, फर्स्ट नॉलेज, सेकेंड स्किल्स, थर्ड नेटवर्किंग. अगर ये तीनों चीजें आपके पास है एंड यू नो हाउ टू यूज दैट थिंग्स, you are definitely grow in this industry. So knowledge
और स्किल्स और नेटवर्किंग आप ये कोर्स के थ्रू आपको आने वाले 4 मंथ्स में या 6 मंथ्स में जो भी आपका क्लासेस का टाइम पीरियड है उसमें आपको एक्वायर करने हैं. सो अगर आप अपना रेडमी से और वीवो से किसने ज्वाइन किया, रीनेम करो अपने आप को और कैमरा ऑन करो. सो अगर आप हमेशा कैमरा ऑफ करके रहोगे तो क्या मैं लीना को देख सकती हूँ, क्या मैं शुभम को देख सकती हूँ, क्या मैं तुषार को देख सकती हूँ? तो तुषार मेरे माइंड में नहीं रहेगा या लीना मेरे माइंड में नहीं. सो कभी आप अगर मेरे सामने भी आओगे, सो डू यू थिंक दैट कि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगी? और आप अपने मेरे से जो बेनिफिट लेना है, लाइक समझ लो आपको एक रेफरेंस चाहिए, तो रेफरेंसेस मिलते कैसे हैं? अगर मैं लीना को जान गई है 4 महीने में, मुझे पता चला लीना इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड शी कैन डू excellence or achieve excellence or do some great things for the organization also, and if I refer her, वो मेरे लिए भी एक स्टार पॉइंट मेरे भी क्राउन में जाएगा. तो डेफिनेटली व्हाई शुडंट आई रेफर यू? क्योंकि मुझे हमेशा बहुत सारे कॉल्स आते हैं और ऐसे हर एक को आते हैं जो भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो 5-6 साल इस इंडस्ट्री में बिता चुका है. मेनी टाइम्स उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी अदर कंपनी में उनके जो जान पहचान वाले होते हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं यार एक वैकेंसी है, अच्छा बंदा चाहिए ये बोलते हैं. अब होता क्या है, मैं अगर जानती ही नहीं लीना को, मुझे अगर पता भी है कि लीना इज लुकिंग फॉर अ जॉब, व्हाई शुड आई रेफर हर? बिकॉज आई डोंट नो हर. कल को लीना ने वहां जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया, सो व्हाट दैट पर्सन, यार तेरे कहने के कारण मैंने लीना को हायर किया बट वो गर्ल तो ऐसा करती है. So this is the things, hence many people are afraid to refer the freshers, though they know the vacancies. So henceforth, जब कभी भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, डोंट ऑफ योर कैमरा. मतलब कभी भी ये चीज मत करना. दो नो वन विल टेल यू, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम फैकल्टी वोंट टेल यू दैट स्विच ऑन योर कैमरा, देन also you should have just when the class will start, you should have to on your camera. This is the first thing. Networking की है, आपको अपने आप को present करना है. It's not like that people will come to you and ask, okay Tushar, do you have any concern, do you want my help? No, you should like go that person, introduce yourself. और वो introduction भी कैसे होना चाहिए? That will be the professional kind of introduction. It's not like CV kind of or biodata. I am Tushar and done B Farm and looking for the job, can you refer? It's not like that. आपको वो ये सब चीजें आपको ये क्लास में सीखनी है. So you will on your camera, listen to faculty, write it down whatever the instructions they are giving to you, and then you will ask them in between or as per their instructions, जैसे भी वो आपको बोल रहे. So ये हुआ मतलब बताना कि कैसे आपको ऑनलाइन क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते कि ऑनलाइन, हेमलता ऑन करो आपका कैमरा, बोलते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लास नहीं समझ में आता. ऑब्वियस, अगर तुम बैठे हो सामने किसी के, अपना कैमरा तुमने ऑफ करके रखा है, तुम वहां पे कुछ और काम कर रहे हो या लेट के, हमेशा जब भी क्लास करोगे आप अपना टेबल चेयर पे प्रॉपरली जैसे कॉलेज में या क्लास में बैठते थे वैसे ही बैठोगे. आपके पास एक बुक नोटबुक होनी चाहिए, पेपर पेन होना चाहिए, बिकॉज अभी तक मैंने आपको कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस दी. डू यू थिंक दैट आफ्टर 1 वीक यू विल लाइक, आपको इस जो भी सजेशंस हम दे रहे हैं उस पर आपको वर्क ऑन करना है. जैसे मैंने बोला नेटवर्किंग कैसे किया जाता है, तो आपको इसमें से अभी 2-3 पॉइंट्स मिले, तो अगर आपने वो लिखे नहीं है, I definitely tell you that you are not working on that point. तो वो आप अगर खुद को डेवलप नहीं करोगे, see why you are not getting job today, इसके रीजंस आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की. You are a well graduate or post graduate students who has like got more than like आपको जो percentage है, obvious that is more than 60%, so that is a good enough criteria to enter in any industry. But why you are not getting? Because do you know that companies are aware that Tushar is from so and so college, has done a B Farm with a good CGPA? Have you introduced Tushar to any companies or any like employees of like senior employees of any of the organization? No. So how come job will come to you?
और ये सिर्फ चीज सबके लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुभम, अपना कैमरा, और आप जब भी अभी ये ऑनलाइन क्लास करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको आपका नेटवर्क अच्छा रखना है। हम बहुत क्लासेस इसीलिए, मतलब दिन में 4-5 घंटे तो आपके क्लासेस नहीं होंगे जो आपको बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा जीबी का नेट मतलब नेट लगेगा। आपको एटलीस्ट 2 या 3 ही क्लासेस होंगे, तो आपको 1 GB बहुत अच्छे से रखना है, खाली रखना है, आपको इंटरप्शन नहीं आए। ठीक है, ये एक चीज हो गई। सेकेंड थिंग, मतलब मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको बताया, एंड सिंस माय लाइक जब मैंने ये जॉब ज्वाइन किया था, आई हैव फाउंड मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज आई हैव स्टार्टेड टीचिंग. I started teaching in a clinical trial management domain. So I have found many students can't understand the course, though they complete the course. The reason is that the language, research language is little bit critical. You can't mug up. Like हमें कैसे आदत पड़ी है, आपने अभी 10th तक 12th तक और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया, हमने चीजें मगअप की है, और जाके हमें पहले से पता रहता था इतने क्वेश्चंस है, इतने में से ये आ सकता है, लास्ट 10 साल के पेपर निकालो, ये होता है, एंड इन दिस वे आपने स्कोरिंग की है. बट इन अ रियल वर्ल्ड दिस डजंट वर्क. आपको यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट है, आपने जो अभी सीखा है केस स्टडी बेस्ड, मतलब क्या होता है, लाइक कंसिडरिंग दैट आप किसी पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि आगे सीन क्या होने वाला है, वो पेशेंट आपसे क्या बात करेगा, वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको, या फिर जो आपका नॉलेज है उसके थ्रू आपको वो चीजों वो सिचुएशंस को डील करना है. सेकेंड थिंग ऐसा भी रहेगा कि जो नॉलेज है, आपने अभी तक जो भी बी फार्म या जो कुछ कोर्स किए हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है कहीं जाके, बट ये कोर्स करके आपको वो इम्प्लीमेंट करना है. लाइक अगर जो लॉग्स होते हैं, या समझ लो आप पीवी में चले गए, वहां पे एग्जैक्टली जो केस प्रोसेसिंग कैसे होता है, या आप सीडीएम में गए तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैसे कैप्चर किया जाता है, या रॉ डेटा कैसे जनरेट किया जाता है. Whole clinical research industry is like that, generating data to the मतलब न्यू ड्रग जो है उसको सबमिशन करना है DCGI या हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को. ये है पूरा, मतलब रॉ डेटा से लेके एक क्वालिटी चेक होने के बाद जो डेटा है. सो वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस. एंड सेकेंड थिंग डेटा. सो अगर आप ह्यूमन के साथ मतलब ह्यूमंस के साथ अगर आप आपका माइक ऑफ रखो मोना एंड पूर्वा, अगर आप ह्यूमन के साथ डील करने वाले हो, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, सो हाउ कम यू विल डू द जॉब. सो यहाँ पे स्किल सेट यूज होता है. तो आपको समझ में आया, नॉलेज, स्किल सेट और नेटवर्किंग, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड यू आर गोइंग टू लर्न दीज 3 पॉइंट्स इन दिस क्यूरिकुलम. अभी नॉलेज जो है, आप जैसे मैंने बोला कि आपने बी फार्म किया, बट आपने वो जो बी फार्म का नॉलेज है वो कहीं अप्लाई करने नहीं गए हो, बट अभी ये जो कोर्स करोगे ये सेम आपको अप्लाई करना है. योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विल काउंट. सो हाउ विल यू विल गेट फर्स्ट जॉब. फर्स्ट जॉब में यही देखा जाता है कि जो इन्होंने पढ़ा है क्लास में या कोर्स में, ये कितना अप्लाई कर सकते हैं. ओके, अप्लाई नहीं कर सकते बट सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं क्या, या अगर ट्रेनिंग देने के बाद कितना काम कर सकते हैं. सो देयर आर 3 लेवल्स. वन इज दैट A+, जो ज्वाइन करते ही अप्लाई कर सकते हैं. दैट पर्सन डज नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग, दैट पर्सन कैन लाइक ज्वाइन एंड स्टार्ट वर्किंग. सो उसको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा. उससे भी थोड़ा ए बोलेंगे कैटेगरी, जिसको समझ में तो आया है बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस वो जाके मतलब तुरंत दूसरे दिन जाके काम तो नहीं कर सकता है. तो उसके लिए फिर रहेगा कि हाँ 2-3 महीने का ट्रेनिंग या किसी सीनियर के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड दैट पर्सन, और हो सकता है वो मतलब हर बार कोई मुश्किल टास्क जो है वो हर एडवाइस ले लेके करेगा. सो दैट इज वन कैटेगरी. तो उसको थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगा, बट हाँ उसका कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा है. ही कैन कोऑर्डिनेट विद ईच टीम मेंबर्स बट कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. ये रहेगा सेकेंड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी ये है जिनका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा नहीं है, जिनको कोऑर्डिनेट करना नहीं समझ में आता है, बट दे आर हार्ड वर्कर. ओके, सो ये तीनों टाइप के लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते. जो थर्ड कैटेगरी जो मैंने बोला, अगर अभी समझ लो आपको ऐसा लगता है कि आप थर्ड कैटेगरी में है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स,
बात करो ग्रुप में। आपको इसीलिए एक ग्रुप में रखा है कि आप एक दूसरे के साथ समझो क्या कोर्स रहेगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझी है फैकल्टी की, आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या ग्रुप में जो लोग हैं बैचमेट के साथ डिस्कस करो, इसलिए ग्रुप बनाया है। तो ये जो लोग होते हैं, आपका मेन एम ये नहीं होना चाहिए अभी, जैसे बहुत बार होता है कि यार मुझे इतना सैलरी मिलेगा तो ही मैं जॉब करूंगी, या मेरे घर के पास रहेगा, या इस सिटी में रहेगा। ऐसे सोचते सोचते ही ना 1 साल 2 साल चले जाते हैं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग क्राइटेरिया टू लाइक गेट द जॉब और टू एंटर द इंडस्ट्री। अगर आप कोई भी 3 कैटेगरी में हो बट आपको जॉब करना है, यू कैन एंटर। आपको बस आपका लेवल अप करते जाना है। if you know how to level up yourself, then you are definitely explore, or whatever you want from this industry you will definitely get. निखिल और मोहिनी अपना कैमरा ऑन करो। सो ये हो गया आपको मतलब नॉलेज का या ये कोर्स का कैसे यूज करना। मोस्ट प्रोबेबली दो स्टूडेंट हु हैज लाइक गेट द एडमिशन लाइक, और उन लोगों को हमने बुक्स भेजी है। सो जस्ट चेक ऑल द बुक्स। जो भी टॉपिक आपको कल पढ़ाने वाले हैं उसका पहले ही लिंक जनरेट होता है और उसमें टॉपिक का नाम भी होता है। सो पहले थोड़ा सा रिव्यू करो कि अच्छा कल अगर समझ लो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ये टॉपिक है, तो क्या मुझे पढ़ना है, थोड़ा सा आप देख के आओगे ना, सो आपको समझ में आएगा। कुछ नए वर्ड्स है, समझ लो स्टेक होल्डर्स है, या क्लिनिकल रिसर्च का डेफिनेशन है, हेल्दी वॉलेंटियर्स है, तो वॉलेंटियर्स का समझो। आपको मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा वर्ड नहीं पता है, बट आपको अगर जैसे कोई वर्ड नए लगते हैं आप पहले से देख के बुक में लिख सकते हो उसका। तो दिस इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड वॉट एवर लाइक वी आर टीचिंग यू इन फ्यूचर। सेकेंड थिंग, आपको कैमरा ऑन रखना है, फैकल्टी को तुरंत आपकी चीजें क्लियर करना है। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारा जो चीज है हम रिकॉर्डेड सेशंस आपको LMS में प्रोवाइड करते हैं। तो जो चीजें आपको नहीं समझे आप सेम डे उसी दिन बुक्स ओपन करके देखोगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जैसे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो वैसे आप देखोगे, क्योंकि आपको वो लिंक समझ में आएगा और जो आपको नहीं समझा है वो भी समझ में आएगा। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस का अच्छा यूज करते हो, दैट विल बी द ग्रेट थिंग फॉर यू। मैं मेरे 2 स्टूडेंट्स का एग्जांपल देना चाहूंगी। दे आर लाइक बेस्ट स्टूडेंट्स थ्रू आउट माई लाइक, ये जो भी अभी तक बैचेस चल रही, ऐसा नहीं कि बेस्ट नहीं, हर बैच में कोई ना कोई बेस्ट होता है। ये 2 बेस्ट मैं इसलिए बोलना चाहूंगी क्योंकि उनका जो करियर के होप्स थे ना, वो एकदम से कोई होप नहीं थे, होपलेस करियर चल रहा था उनका जब वो मुझे मिले। लाइक वन इज अ सुशील अपोतिकर, ये स्टूडेंट है, उसने BSc किया था। he is a very smart और इंटेलेक्चुअल गाय, बट कुछ घर के सरकमटेंसेस के कारण वो कहीं बाहर अप्लाई नहीं कर पाया। और जो जॉब उसको पहला मिला जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, उसने वो ज्वाइन किया और वो जॉब था लाइब्रेरियन का। ठीक है, वो भी कॉलेज लाइब्रेरी नहीं, ऐसी जो जनरल लाइब्रेरी होती है। सोचो BSc करने के बाद वो 3,000 रुपए पे जॉब कर रहा था। ऐसे करते करते उसको 3 साल हो गए थे। जब वो मेरे पास आया उसका ये था कि मैम मुझे इस इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी क्या। सो आई सेड दैट हाँ अगर करोगे तो मिल जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो बोला आप मुझे बस बताओ मैम क्या करना है, मैं वो हर चीज करूंगा। सो उसने प्रॉपरली कोर्स किया विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। वो क्लासेस में आता था। ये ज्यादा पहले की बात भी नहीं, हार्डली 2-2.5 साल पहले की बात है। एंड देन उसके बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ तो हमने उसको एक साइट पे एज अ ट्रेनी प्लेस किया। जब ट्रेनी प्ले, वो साइट बहुत अच्छा था उसका, था वो थोड़ा सा कि वो डॉक्टर इतने बड़े हैं, मैं उनके पास जाके काम करूंगा क्या, कैसे रहेगा मुझे, तो ये बहुत सारा क्वेश्चंस उसके दिमाग में, और वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा था जाने के लिए। सो आई सेड दैट जस्ट जॉइन द इंटर्नशिप, डोंट थिंक एनीथिंग कि भाई मुझे जाके क्या मिलेगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो बंदा वहां गया, 3 मंथ्स का इंटर्नशिप उसने किया। फॉर्चुनेटली उसी साइट पे एक वैकेंसी निकला था। तो जहां भी जो साइट पे वो काम कर रहा था, वहां की जो साइट मैनेजर थी वो इससे काफी इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि इसने जो उसने काम उसको बताए या जो चीजें सिखाई इतने अच्छे से किया था, उसने वो काम किया। देन कोविड हिट्स,
तो करियर मतलब थोड़ा सा ब्रेक लग गया कि साइट्स पे जाना आना, मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बस सडनली एक दिन उसको डॉक्टर मुकेवार, वो मुकेवार साइट पे था, डॉक्टर मुकेवार का कॉल आया कि देखो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और मुझे अच्छा लगा तुम्हारा काम। मतलब उसका था, जितने देर सर हॉस्पिटल में रुकते थे उतने देर वो भी रुकता था। लाइक सर 11 बजे आते थे और रात के 8:30-9 बजे जाते थे। तो सर जाते हुए उसको हमेशा देखते थे। तो सर ने उसको बोला कि देख मैं चाहता हूँ कि तू वो प्रोजेक्ट करेगा क्या। इसने तुरंत हाँ बोल दिया एंड डे वन, मतलब उस टाइम से उसका सैलरी 15,000 फॉर वन प्रोजेक्ट था। सो ये मिरेकल है इस इंडस्ट्री में। कहाँ उसने शुरुआत की थी 3,000 पे, विद इन 7-8 मंथ्स उसको 15,000 मिला। नाउ उसने वहां पे 1 साल काम किया। उसको क्लीनरा क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज करके कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे CTA का जॉब मिला, क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट, जो कि सैलरी 27,000 एंड प्लस अदर एक्सपेंसेस थे। And within after like 8-9 months he got opportunity in Reliance Life Sciences. It's a sponsor company. वहां पे उसको CRA का जॉब मिला एंड ऑब्वियस वो उससे ज्यादा ही होगा, मतलब अराउंड 40,000 उसने मतलब मोर देन लेस देन 3 years में, जहां वो 3,000 कमा रहा था उसको इतना मिल रहा है। एंड प्लस उसका जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, जो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मुझे मेरे लाइफ से ये चाहिए था, वो तो अलग ही है। तो ये इस इंडस्ट्री का मतलब ये है कि कहाँ 3,000 से वो 2-2.5 साल में 40-45,000 तक, और वो भी मुंबई में उसको मिला है जॉब। तो और वो अभी जस्ट 2-2.5 साल ही हुए। सोचो वो अगर 5-6 साल इस इंडस्ट्री में रहता है तो वो कहाँ तक पहुंचेगा। सो ये स्टूडेंट का एग्जांपल मुझे हमेशा याद दिलाता है कि हाँ अगर तुम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रेडी रहते हो, सो एवरी टाइम ही इज रेडी टू गो इन अनकंफर्टेबल पोजीशन एंड देन बिकम अ कंफर्टेबल एंड देन अगेन गो इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। तो आपने देखा होगा कि मुकेवार साइड पे जाना उसके लिए कितना मुश्किल था। वहां से वो, क्योंकि डॉक्टर मुकेवार इज अ लीडिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन नागपुर। नागपुर क्या, अगर आप महाराष्ट्र में या इंडिया में भी बोलोगे, ही इज ऑलमोस्ट 70 years ओल्ड। वो जो डॉक्टर है उनके अंडर में काम करना एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट टू उसको ये सब कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद उसने उन्होंने जब कॉल किया, हाँ तो ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, बिना मतलब उनको ना बोले उन्होंने वो ज्वाइन किया। ये भी नहीं पूछा कि आप मुझे कितनी सैलरी दे रहे हो। सर हैज डिसाइडेड दैट 15,000। देन थर्ड थिंग, वो यहाँ से मुंबई जाने के लिए रेडी हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइट से लेके उसने मतलब CRO में काम कैसे करते, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, वो उसने गेन किया। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगी एक स्टूडेंट की जिसका नाम श्रद्धा रसम है। शी इज अ वेरी सिंसियर। 1 महीना लेट कोर्स ज्वाइन किया था उसने, 1 महीना लेट कोर्स ज्वाइन किया, बट वो जो LMS पोर्टल था उसका इतना अच्छे से यूज किया उसने कि जो भी उसका क्लास मिस हुआ था वो प्रॉपरली देखा, जो डाउट्स थे वो 1-on-1 सेशन में क्लियर किए। जितना भी क्लासेस में बहुत ऑर्डिनरी थी, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन था। देन उसने मतलब उसको जब ये क्लास हुआ तो ऑब्वियस उसका MSc बैकग्राउंड था और उसने QA में काम किया था 18,000 सैलरी पे। मतलब 4-5 साल हो गए थे वहां पे, आई थिंक 4 साल वगैरह हो गए थे जो उसको वहां पे 18,000 सैलरी मिल रहा था। मतलब लाइक शुरुआत कुछ अलग हुई होंगी एंड लास्ट डे उसका 18,000 उसको मिल रहा था। सो व्हाट शी हैज डिसाइडेड कि नहीं मैं चेंज करती हूँ, और ये सब सीन उसने हमारे साथ डिस्कस किया था कि व्हाई शी वांट टू चेंज कम इन ए क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। सो जब वो आई, उसका मतलब नॉर्मल वो आपके जैसी ही थी, बहुत ब्रिलियंट कम्युनिकेशन नहीं था और बहुत अच्छा क्लिनिकल रिसर्च का आपको जैसे आज कुछ नहीं पता वैसे ही उसको नहीं पता था। बट ड्यूरिंग 6 months उसने वो धीरे धीरे ग्रैब किया। उसको पुणे में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में हमने इंटर्नशिप दिया था 3 months का, ठीक है। उस 3 months में वो इतनी वहां की चहेती हो गई थी कि हमें कॉल आया था कि द स्टूडेंट यू हैव सेंड टू अस इज अ वेरी मतलब लाइक गुड एंड वी वांट टू कीप हर एज अ एम्प्लॉय, अगर इफ शी वांट्स टू ज्वाइन और हम उसको 15,000 सैलरी दे देंगे करके। तो उसका मतलब वहां पे वो जॉब फिक्स हुआ। जस्ट इन 3 months उसको 15,000 सैलरी मिल रहा था। और वहां सभी लोग, आज उसने जॉब छोड़ मतलब वो ट्रेनिंग छोड़ने के बाद आज 2-2.5 साल हो गया, बट अगर मैं आज किसी को भी कॉल करूंगी कि श्रद्धा कैसी लड़की थी या ऐसा उसका अगर टॉपिक निकलता है तो एवरीवन से यार वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसने ना मुझे बहुत हेल्प किया।
तो ये वाला अप्रोच था। अब जो मेन साइट मैनेजर थी उसका भी बहुत अच्छा उसके लिए ओपिनियन था। She has like appeared in TCS interview. Do you won't believe that she like got selected over there as a senior drug safety associate, and she like first job ही उसका 25,000 का था, and that is in a COVID stage. तो आप सोचो उसको कहाँ 18,000 18,500 मिल रहा था सैलरी विद इन 6 और 3 months का इंटर्नशिप। 9 months में उसको 25,000 तक वो लैंड की, दैट टू इज TCS। वो भी उसको जो डेजिग्नेशन मिला था वो फ्रेशर का नहीं था, लिटिल बिट सीनियर डेजिग्नेशन था। इतना अच्छे से उसने इंटरव्यू प्रिपेयर किया। जो हम लोग CV मेकिंग क्लास लेते हैं या हाउ टू क्रैक इंटरव्यू ये क्लास लेते हैं, उसका जो यूटिलाइजेशन था वो उसने बस प्रॉपर वे में जो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे अकॉर्डिंगली दैट किए थे। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि होता नहीं है, देर आर मतलब करने वाले लोगों को अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया है और उम्मीद से अच्छा किया है। इवन आई नेवर एवर थॉट दैट कि श्रद्धा कैन क्रैक द इंटरव्यू बिकॉज शी वॉज जस्ट MSc स्टूडेंट, बट उसमें वो जिद था और उसने मतलब बहुत अच्छे से और लाइक लिटरली हमारे बस इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो किए थे, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क नहीं किया था। So अगर if you are ready to follow the instructions, because see I have seen this industry like clinical research industry India में आई ही 2000 में, ठीक है 2000 में जब आई, considering that it's in an infant stage and now it's in toddler stage, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। you are in a right stage to enter and grow। आपको इतना ज्यादा मतलब आपको जो भी चाहिए लिख लो आज ही, मुझे what I want from this industry, I want job, Mohini, Mona, Zareen, Ravina, if you are sitting in the class and like keeping off your camera, does it make any sense? और आप जैसे मुझे बहुत बार जो स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं समझ में आता, इवन दो इफ यू आर इन लाइक ऑफलाइन क्लास और आप आपके कान और आंख बंद करके बैठे हो, डज इट मेक अ सेंस? अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या आपको इससे ग्रैब करना है, सो हैव यू मेक द पॉइंट्स। आज जैसे मुझे क्लास लेनी थी तो मैं 10:15 बजे ही रेडी होके मैंने लाइक लिंक ओपन किया था। आप लोग कितने बजे? 10:30 और कोई कोई अभी अभी आ रहा है। सो हैव यू मेड अ पॉइंट कि मुझे आज के क्लास में से क्या लेना है, मैम को क्या क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि डायरेक्टर मैम आपका क्लास लेने वाले। सो हैव यू थॉट कि हाँ मुझे क्या चीज पूछनी चाहिए, हाउ डू आई मेक माई गुड रिलेशनशिप और नेटवर्क विद द मैम सो दैट मैम कैन रेफर मी इन फ्यूचर? एनीबडी? निखिल, मोहिनी, कैन यू हियर मी? यस मैम। मोहिनी मुझे बताओ, आप अगर ऐसे बैठे हो मुझे कैसे पता चलेगा कौन मोहिनी है? What the says, मतलब आप अगर कोई सेशन अटेंड कर रहे हो जिसमें आप अपने 100% नहीं दोगे, आप कैसे निकालोगे? आपको पता है अगर आप चाहते हो, समझ लो आपको एक क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में आना है, आपको एक जॉब चाहिए, ठीक है, आपको कोई ऐसे इंसान से मिलना है जो इस इंडस्ट्री में काम कर चुका है। इज इट पॉसिबल फॉर यू दैट यू कैन स्पीक विद दैट पर्सन फॉर 1 hour? No ma'am. So now this is the golden opportunity, and what you are doing, you are missing that. Ravnina and Zareen, क्या are you getting my point? और ऐसे अपॉर्चुनिटी को समझने हैं ऑन योर कैमरा। ये अगर अपॉर्चुनिटी आप समझोगे नहीं तो आप कैसे ग्रो करोगे? अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो B.Pharm, BSc, MSc, PharmD, M.Pharm करते और ये इंडस्ट्री में आते हैं इंडिया में? निखिल, कैन यू गेस? लाखों में है, चलो नंबर्स नहीं पता है। सो अगर लाखों में है, इतना कंपटीशन है, हाउ आई नो दैट कि हाँ मुझे आयुषी को ही सिलेक्ट करना चाहिए? या आपने ऐसा क्या किया आयुषी कि हाँ मुझे आयुषी को सिलेक्ट करना चाहिए? बिकॉज सब तो एक ही है, सब लोगों ने B.Pharm किया है, सब लोगों ने MSc किया है, सो व्हाई शुड आई, एंड ऑल दीज आर अवेलेबल फॉर मी, सो व्हाई शुड आई लाइक आई सिलेक्ट आयुषी ओनली?
what the difference you have made? Zareen, आपका माइक म्यूट है. ऐसा क्या है कि हाँ मुझे जरीन को ही सिलेक्ट करना चाहिए? अभी आप बोलोगे कि मैम मैं कोर्स करूंगी, तो कोर्स भी करने वाले अभी बहुत बच्चे हैं. मतलब इनिशियली बहुत कम बच्चे कोर्स करते थे, बट अभी मैंने देखा है कि लास्ट ये जब कोविड टाइम है तब से ऑलमोस्ट हर बच्चा कहीं ना कहीं कुछ तो कोर्स कर ही लेता है. भले ये बहुत अच्छा नहीं करेगा, बट एक ICSGCP का सर्टिफिकेशन कोर्स तो कर ही लेगा. सो व्हाट मेक डिफरेंस in you and among all these people? What are the things? Have you written in that कि हाँ मैं ये चीज करूंगा? मुस्कान, सो क्या डिफरेंस आप अपने आप मतलब कैसे सेग्रीगेट करोगे कि हाँ आपको मुस्कान को ही ऑफर देना चाहिए रादर देन जो बाकी के लोग हैं? व्हाट आर दीज डिफरेंसेस? मैम कनेक्शन और स्किल्स आप जो देखोगे या जितना अटेंटिव हम रहेंगे उसके हिसाब से. वो तो आगे फ्यूचर की बात है, बट हैव यू रिटन डाउन टुडे कि हाँ ये आने वाले 6 महीने में ये वाली चीज मैं अलग से करूंगी? तो ये ही टाइम है आपको, ये जो आपने पैसे पे किए हैं ना, ये इसका इस तरह से यूज करना है. सी अगर आप सोचोगे कि मैंने बी फार्म किया है, मैंने एम फार्म किया है, मैंने कोर्स किया है, आई पेड द फीस, आई हैव विजिटेड दैट कॉलेज, सो व्हाई नॉट आई एम गेटिंग सिलेक्टेड, और मुझे क्यों नहीं जॉब लगेगा? तो इन दिस वे कुछ नहीं होने वाला है. आप किसी से ऐसे लड़ते नहीं बैठ सकते. बट अगर आपने ये पॉइंट, अरे सभी लोग तो ये सब कर रहे हैं, बट मैं ऐसा क्या अलग कर रही हूँ सो दैट आई गॉट सिलेक्टेड, सो दैट आई कैन गेट 15,000 salary, so that I can get promoted. Even though if you get first job and then there will be the chance of like every year increment or promotion hota hai, so why you will get the increment, why you are get promoted? तो आपको ये चीज हर वक्त अभी सोचनी है. So like college life and real world life is a totally different. हम एजुकेशन जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो क्रैमिंग का है. लाइक हम मगअप करते हैं, पेपर में लिखते हैं, मार्क्स लाते हैं, एंड देन वी गेट प्रेज्ड बाय आवर टीचर, पेरेंट्स, आजू बाजू के सोसाइटी के लोग हैं. बट रियल वर्ल्ड में आप मगअप करके आओगे ना, इवन आपको कोई क्लिनिकल रिसर्च का डेफिनेशन पूछता है और आप ऐसे बोलोगे हाँ ह्यूमन सिस्टम और वो फेज 4, अगर इस तरह से आप डेफिनेशन बता रहे हो ना, नो वन विल अप्रिशिएट यू. आपको एक्चुअल मीनिंग अगर आप बता पा रहे हो कि हाँ क्या है क्लिनिकल रिसर्च, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तो आपको ये सारी चीजें समझनी है थ्रू दिस कोर्स. आज का क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या निकलना है ये क्लास से, ये आपको पता चले. ये हमारा मोटो, क्योंकि ऐसा ना हो आप 4 महीने क्लास करोगे, जो आपने अभी तक आपने जो सीखा है, आपने यही सीखा है कि हाँ क्लास में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है. इट्स नॉट लाइक दैट. आप यहाँ पे अगर देखोगे आपके अराउंड या इंडस्ट्री में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बैक बेंचर्स थे पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है. So उनको तो अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, then why they are getting good things day by day and improvising themselves, or they have achieved their dream jobs, achieved their dream levels. तो ये इसलिए हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्री का जो सिनेरियो था वो समझ लिया और उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं फिट किया है. तो आपको ये 6 महीने में सबसे पहले इंडस्ट्री को समझना है. व्हाट इंडस्ट्री एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रेशर्स, because you all are freshers. So आपसे क्या उम्मीदें है HR और टेक्निकल राउंड जो लेते हैं उनकी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की और कंपनीज की. नोट इट डाउन. आपको आपका नॉलेज, स्किल सेट और नेटवर्किंग इम्प्रोवाइज करना है. करीब करीब 10 से 15 फैकल्टीज अभी ये कोर्स में रहेंगी थ्रू आउट द ये 4 months एंड 3 months. जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे वहां पे अलग अलग कंपनी के CRA आएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर आएंगे, सीनियर CRA रहेंगे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे. तो ऐसे आप 25 से 40 लोगों को अलग अलग मिलोगे अभी ये 6-7 महीने में. तो आपको हर एक के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रैपो डेवलप करना है, सो दैट वो बोले यार तुषार बहुत अच्छा है. इवन तो आप डॉक्टर से भी मिलोगे जिनके लिए आप काम करने वाले हो,
तो आपको इन सभी लोगों से बहुत अच्छा रैपो डेवलप करना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन उनको दिखाना है. यू विल गोइंग टू शो योर बेस्ट वर्जन टू देम. ये ये चीज हो गई. प्लस नॉलेज जो है, हम केस स्टडी बेस्ड सिलेबस जो बोलते हैं, लाइक वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर जॉब, वो चीजें आपको थेरेटिकली क्लासेस में बताई जा रही है विद एग्जाम्पल्स. आपको वो समझनी है एंड वो आप कैसे अप्लाई करोगे, वो आपका जो मतलब प्रैक्टिकली इंटर्नशिप रहेगा उसको अप्लाई करना है. सो इन दिस वे अगर आप करते हो, प्लस हम आपके कुछ क्लासेस स्वॉट एनालिसिस पे या स्किल डेवलपमेंट पे लेने वाले हैं, उसमें आप कहाँ हो, लाइक आपका स्वॉट क्या है. स्वॉट मीन स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एचआर का क्वेश्चन क्या रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. एंड आप क्या बताते हो, आई एम मुस्कान सो एंड सो, आई हैव डन बी फार्म एंड आई गॉट दिस मार्क्स, आई हैव डन माय PGDCR कोर्स. So all these things has written in your CV. What's the sense to say these things again and again? HR is not expected these things. Now you are knowing that you are going to ask, tell me about yourself. It's your duty to make a good answer of this question or frame in a such way that HR get impressed. So 100 student में से आप हो जिन्होंने कुछ अलग आंसर दिया है. Do you think that your chances get increased to get select? Am I right? यस मैम. समझ में आ रहा है. तो आपको ये सारी चीजें अभी ये 4 महीने में करनी है. सो नेवर एवर थॉट टू मिस एनी क्लास, बिकॉज अगर आप एक भी क्लास मिस करते हो, इवन दो आज का क्लास आज मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट पढ़ना क्या है ये आपको बताया है. तो आज अगर आज का भी क्लास आप मिस करते थे, सोचो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आती थी. आप अपना टाइम वेस्ट, आपने क्लास इसलिए नहीं लगाया कि आपके पास पैसे थे और आपको कहीं से पता चला है कि रिक्रूटर्स की रिक्वायरमेंट है कोर्स का सर्टिफिकेशन. कोर्स का सर्टिफिकेशन ये रिक्वायरमेंट नहीं है. आप अगर बोल नहीं पाओगे इंटरव्यू में, तो आपका वो सर्टिफिकेशन, डिग्री या डिप्लोमा कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा. आपने कभी देखा है, आप कभी जाते हो इंटरव्यूज के लिए, तो क्या HR या रिक्रूटर आपको बोलता है कि पहले आपके सारे सर्टिफिकेट भेजो? क्या बोलते, पहले आप आओ, ठीक है, पहले आपका CV जाता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहां वो लोग डिसाइड करते हैं आपको लेना है नहीं लेना, एंड देन आपकी डिग्रीज और डिप्लोमाज जो भी सर्टिफिकेट्स है वो कलेक्ट किए जाते हैं या वो मांगे जाते हैं. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट हो. आप कैसे चीजें हैंडल करने वाले हो. आपका जो सर्टिफिकेट है ये जस्ट बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको रखना, मतलब लाइक यू गेट सिलेक्टेड. अगर आप ऐसा भी है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है या PGDCR का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं, बट यू हैव अ गुड नॉलेज एंड ओनली यू गेट सिलेक्टेड. बट अगर ये सब नहीं है और सर्टिफिकेट है तो कोई आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट आपके बाद जाते हैं. सो कीप इन माइंड दैट यू आर इम्पोर्टेंट. इफ यू आर लाइक आई एम हायरिंग by saying Tushar, by saying Manasvi, by looking Hemlata, ki Hemlata kaisi, can she do a work whatever I will assign her. So if she is okay, if she can perform and she gave me that confidence, why हम interviews क्यों conduct करते हैं? क्योंकि मुझे वो 15-20 मिनट में या आधे घंटे में ये समझना होता है कि हेमलता जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, क्या जो टास्क हमें उस डेजिग्नेशन के लिए है या उस जॉब प्रोफाइल के लिए वो कर पाएगी क्या, उसमें क्या लैकुनाज है, तो मैं उसको क्या ट्रेनिंग दूं, इसलिए होता है. सो एवरीवन, मतलब every company, every organization has their own to-do list to select the candidates, और आपको वही चीज समझनी है. ठीक है, तो अभी हमारा ये रहेगा, कल से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं. आपको टाइमिंग और कल के टॉपिक्स पहले ही बता दिए जाएंगे. कल का फैकल्टी मेरे ख्याल से गुरुदत्त बोरकर है, जो IQVIA में और इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15-16 साल हो गए हैं उनको. ही इज अ मोस्ट सीनियर, मतलब लाइक मोस्ट सीनियर फैकल्टी इन आवर फैकल्टी लिस्ट, और वो इंटरव्यूज भी लेते हैं. तो कल का क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च है. तो क्लिनिकल रिसर्च में इंट्रोडक्शन में अगर आप जाओगे, जिसके पास अभी बुक्स है वो देखना, उसमें हमने करीब 100 कंपनीज के नाम दिए. तो आप लोगों को
उसमें से मतलब आप एक दिन में तो 100 नहीं देख पाओगे, धीरे धीरे एक एक कंपनी के वेबसाइट चेक करने हैं और वहां पे करियर ऑप्शंस है, करियर ऑप्शन में जाके देखना है कि कौन से जॉब प्रोफाइल्स वहां पे अवेलेबल है। आपको कहीं भी अप्लाई नहीं करना, आपको बस चेक करना है। तो जिनके पास भी बुक्स है जिसमें 100 कंपनीज के नाम दिए है, आपका ये टास्क 4 महीने के लिए आप आराम से जाके उस कंपनी का सब कुछ पढ़ोगे। सबसे पहले आप होम पेज पढ़ोगे, होम पेज पढ़ने के या अबाउट अस पढ़ोगे तो वो कंपनी क्या करती है वो आपको पता चलेगा। बिकॉज एट प्रेजेंट इफ आई आस्क यू टेल मी द 10 नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर गोइंग टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप नहीं बता पाओगे। तो आप यही नहीं बता पाओगे कि आपको जॉब कहाँ लगने वाला है, आप सर्च कहाँ करोगे। तो सबसे पहले आपको 100 कंपनीज में से 1 बाय 1 आपको हर कंपनी के वेबसाइट पे जाना है। अगर आप गूगल पे वो कंपनी का नाम डालोगे, जैसे IQVIA डालोगे तो IQVIA के बहुत सारे पेजेस आएंगे और फर्स्ट ही उसका वेबसाइट रहेगा। उस पर क्लिक करके आप अबाउट अस देखोगे। भले आप डेली एक भी देखोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपके पास 4 महीने हैं, उसके बाद 3 मंथ्स इंटर्नशिप के भी है। इनिशियली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है एक कंपनी के बारे में देखने के लिए 2 दिन लगे, इट्स ओके। तो आप वो अच्छे से देखोगे अबाउट अस, उसके बाद वो कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अबाउट अस एंड सर्विसेज एंड देन करियर पेज। ये 3 पेजेस आपको हर कंपनी के देखने ही। आप नोट इट डाउन करो, अबाउट अस, सर्विसेज। सर्विसेज में मतलब क्या सर्विसेज वो ऑफर करते हैं। सबसे पहले आप कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का वेबसाइट सर्च करोगे, कैनवास SAA कैनवास का, कैनवास क्लिनिकल रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप ये देखने के बाद फिर आप मतलब 2 दिन के बाद या 3 जब आपका हो जाए, कैनवास का पूरा वेबसाइट पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और एक चीज बताना चाहूंगी, कैनवास का एक यूट्यूब चैनल है, कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके। आप जाओ और वीडियोस देखना शुरू करो। इस क्लिनिकल रिसर्च का हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से डोमेन्स है, फ्रेशर्स के लिए कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कोर्स कैसे चूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा कोर्स सुटेबल रहेगा, सारे डोमेन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे है, ऐसे n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको कभी कोई नहीं बताएगा वो दी गई है। आपको भले ही ये बोर लगेगा कंटेंट देखना क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है, बट अगर आप ये देखोगे सो कोई भी इन फ्यूचर आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा कि हम आपको जॉब देंगे, आपको बस आप ज्वाइन कर लो, फीस पे करो, दूसरे दिन आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, महीने भर में आपको जॉब लग जाए। ऐसे जो भी फेक ये है, या आगे चल के भी आपको खुद का रोड मैप जो बनाना है करियर का वो समझ में आएगा। ये चैनल आपके अवेयरनेस पर्पस के लिए ही ओपन किया है। और कहीं भी याद रखना, आप कभी भी कोई भी फील्ड में जाते हो, कहीं जा रहे हो, कोई नई चीज कर रहे हो, तो आपका खुद का सर्वे होना और खुद का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। एंड ऑलरेडी यू हैव टेकन फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो आपको ये चीज अगर फ्री में मिल रही है, वहां पे मोर देन 200 वीडियोज है, आराम से अगर एक एक भी वीडियो डेली देखते हो, कुछ ही उसमें वीडियोज है जो 1 आवर के हैं, बट वो 1 आवर के वीडियोज इतने इंपॉर्टेंट है जो आपको एक इनसाइट देंगे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। तो आपके जो क्वेश्चंस है कि मैं CDM में जाऊंगा, मेडिकल राइटिंग में जाऊंगा, PV में जाऊंगा, वो खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री क्या है वो आपको समझ में आएंगी, और आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो अगर इन दिस साइंटिफिक वे में आप जाओगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपके डर का कोई गैरफायदा नहीं उठाएगा। थर्ड थिंग, आप इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे ये कोर्स होते होते तक, सो दैट आपको किसी के हेल्प की भी जरूरत नहीं रहेगी। यू कैन जस्ट, और आपको इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स भी मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि हाँ तुषार आपको ये करना है, एंड यू कैन डू दैट थिंग्स विथ मतलब गुड कॉन्फिडेंस। तो ये आज का मोटिव था ये क्लास का कि मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, और होपिंग दैट कि आप इस पे वर्क ऑन करना शुरू करोगे। हम लोग हर महीने में मेरा एक सेशन होगा। सो अभी जैसे आज मुझे पता है आपको नहीं पता है कुछ क्लिनिकल रिसर्च के, तो सो डोंट गेट अफ्रेड कि मुझे कुछ नहीं पता है, कैसे होगा, मुझे जॉब लगेगी। डोंट थिंक ऑन दैट कि मुझे जॉब लगेगी। बस आपको यही सोचना है कि आपको एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ाना है टू गेट द जॉब।
तो ये जो अभी मैंने चीजें बताई है, ये छोटी छोटी चीजें करना आज से ही शुरू करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। जब भी आप यूट्यूब पे जाओगे, आप एटलीस्ट एक वीडियो तो जरूर देखोगे कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो ज्यादा अच्छा, मतलब ऊपर से नहीं, नीचे से। तो आपको, क्योंकि हमने कुछ तरीके से वो चीज बताई है, तो आपको खुद को समझ में आएंगे वो क्या तरीका है। इफ यू वांट कि आपको एक इंडिपेंडेंट ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें आपको कभी भी किसी पे पैसों के लिए डिपेंड नहीं होना पड़े, या जॉब के लिए एक एंजाइटी नहीं रहे, इंटरव्यू फोबिया नहीं रहे, तो आप ये चीज करोगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चंस है? आज के सेशन का। यस मैम, जो क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री है, ये आपने हाँ। बताया कि स्टार्टेड हुई थी 2000 में, और इसमें जो बूम आया है आफ्टर द एरा ऑफ कोविड, हाँ। तो जो अच्छा, एक इसका मैं जो तुमको मार्केट। इंटरप्ट करना चाहूंगी तुषार, इसमें बूम यस मैम। कोविड से नहीं आया, इसमें बूम पहले से ही था, बट लोगों को ये कोविड से पता चली। क्यों? कोविड से पहले आपने कभी क्लिनिकल रिसर्च का न्यूज पेपर में देखा था क्या? नहीं देखा था। नहीं तो मैम, ट्रायल्स नहीं। तो पहले ही हो रहे थे। आप भी, आपको अगर पता, जैसे 2 डिकेड हो गए समझ लो इस इंडस्ट्री को, तो जो 2 डिकेड में, मतलब लाइक मैंने 1 डिकेड पहले ज्वाइन, मतलब लाइक आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2005, तो तब से अभी मैं ग्रो ही की हूँ, या जो भी मेरे साथ वाले लोग थे वो अभी कंपनी में कहीं अच्छे सीईओ, डायरेक्टर, या ग्लोबली उनका कोई पोजीशन है। तो बूम पहले से ही था, बट ये है कि लोगों तक ये अभी पहुंची है। ओके, बोलो। मैम हाँ, तो जो इसका जो मार्केट साइज के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर अगर मार्केट साइज बहुत बड़ा होगा तो अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। अभी मुझे बताओ, मार्केट साइज में बता रही हूँ, ग्लोबली आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। इसका जो मार्केट साइज है 84 बिलियन यूएसडी डॉलर है। ठीक है, तो आप, और इसमें जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडिया में ही मोर देन 400 कंपनीज है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, स्पॉन्सर मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, प्लस इसमें बीईबीए सेंटर्स है, लाइक रेगुलेटरी अफेयर या रेगुलेटरी एजेंसीज है, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी कंपनीज है। तो ये सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। आप इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो। एवरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन नागपुर हैव मतलब लाइक करंटली कंडक्टिंग क्लिनिकल साइट, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं। आप ग्लोबली इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि इंडिया की तो रिसर्च मॉलिक्यूल्स नहीं है, इंडिया बीएबी करता है। बीएबी मींस ऑलरेडी समझ लो फाइजर का कोई मॉलिक्यूल है, एंड हम लोग उसका लाइक रेफरेंस ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, तो जाइडस, इंटास, ये इस टाइप की कंपनीज है जो रेफरेंस ड्रग बनाती है या बायोसिमिलर्स बनाती है। तो वो भी ट्रायल्स इंडिया में होती है। बट जब यूएस या अदर यूरोपियन कंट्रीज है जिनके ओन मॉलिक्यूल्स है, उनको इंडिया में ट्रायल करना इसलिए जरूरी है, एज पर वन गाइडलाइन उसमें ये बोला जाता है कि जो भी क्लिनिकल रिसर्च आप कर रहे हो या ट्रायल्स आप कर रहे हो, उसका डाइवर्सिफाइड ये होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। मतलब ये इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे मैं यूएस में मॉलिक्यूल, यूएस का मॉलिक्यूल है तो मैं बस लाइक यूएस के कोई कंट्री में ट्रायल कर रहा हूँ, दैट आई कैन लॉन्च इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, आप अगर पूरे वर्ल्ड में वो मेडिसिन लॉन्च करना चाहते हो, और दो आप नहीं भी लॉन्च करना चाहते हो पूरे वर्ल्ड में, तो भी आपका जो पॉपुलेशन वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, लाइक एशियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, क्योंकि सबका रेसेस डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या असर करता है, मतलब वो मॉलिक्यूल उनमें क्या मतलब रिजल्ट आता है, वो अलग अलग हो सकते हैं। सो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। हेंस हर जगह ट्रायल्स हो रही है ग्लोबली, और ट्रायल्स हो रही है तो डेटा निकलेगा, डेटा निकलेगा तो डेटा मैनेज करना है, डेटा मैनेज करना है, या तुम लोग मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो एडीआरस हो रहे हैं, एडीआरस को भी मैनेज करना है, तो फार्माकोविजिलेंस है। हर कंट्री में हो रहा है तो हर कंट्री का रेगुलेटरी एजेंसी है,
हर बार ट्रायल करनी है तो प्रोटोकॉल राइटिंग करना ही है, तो मेडिकल राइटिंग है, इन सब पे क्यूए चेक होना चाहिए, तो क्वालिटी एश्योरेंस है। तो इस तरह से सारे ही डोमेन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, और आप इस तरह से कोई भी डोमेन में बस आपको आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से करियर चूज करना चाहिए, रादर देन नॉट लाइक अगर मैं समझ लो मैंने 2005 में करियर चूज किया, तब तो क्लिनिकल रिसर्च को लोग नहीं जानते थे। इवन आज भी क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है एक्चुअली लोगों को नहीं पता है। तो अगर मैं ये सोचती अरे ये तो करियर किसी को नहीं पता तो इसमें स्कोप नहीं होगा, दैट डजंट मीन अभी और मैंने नहीं ज्वाइन किया होता था तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंची होती। तो स्कोप नहीं होता, स्कोप हमें क्रिएट करना पड़ता है। और दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ये रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो कोई भी नया ड्रग या बायोसिमिलर्स किसी भी कंट्री में जब लॉन्च होता है उसको क्लिनिकल ट्रायल से अंडरगॉन मतलब क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू ही वो मार्केट में आ सकता है। विदाउट क्लिनिकल ट्रायल नन ऑफ द ड्रग कम इन अ मार्केट। So this is the beauty and scope of this industry. Got my point, Tushar? And hoping ma'am. that I clear your doubt. Yeah. So, और मैम एक थोड़ा सा ये करना था कि जो मार्केट साइज है इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च का, वो सर्वे में 2021 में जो यानी कि सर्वे किया गया था उससे 1.8 बिलियन यूएसडी का मार्केट साइज है इंडियन क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री का, एंड इट्स कंटिन्यूअसली ग्रोइंग ऑन सीजीपीए ऑफ 8%, यानी अकॉर्डिंग टू द सर्वे 2030 में ये 3.2 बिलियन की इंडस्ट्री होंगी, यानी कि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। अभी अगर हम बात करें तो एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, यानी कि बहुत सा स्कोप अभी बाकी है। हाँ, ये तो बहुत सारी नई नई चीजें होती रहेंगी। सो यू एनीवन, और आप ये जो अभी बोल रहे हो ना कि इमर्जिंग है ये इतना बिलियन इंडस्ट्री, तो आपको तो कितना एक जॉब ही ढूंढना है इसमें या एक जॉब ही करना है। इवन मतलब ये कब देखना चाहिए पता, जब आपको बिजनेस करना है। लाइक बिलियन एंड ये जो है ये हम बिजनेस लाइक जो करते हैं उनके लिए होता है। एक स्टूडेंट के लिए मुझे बताओ, आप अगर एक जॉब करोगे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको पहले एंट्री मिलनी चाहिए, देन एक 50-60 हजार की सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब एक एक्सपीरियंस के बाद, उसके बाद आपका 5-6 साल में 1-1.5 लाख पैकेज होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक कि आपको ये सब मिलेगा? क्योंकि कितने लोग हैं जो क्लिनिकल रिसर्च जानते हैं, अगर आप अपने ही अराउंड देखोगे बहुत दूर तक तो ज्यादा लोग नहीं है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि अब बहुत लोगों को नहीं पता है। ये तो कोविड हुआ इसलिए लोगों को पता चला, बट ऐसा नहीं था कि इससे पहले लोग कोर्स नहीं करते थे, ऐसा नहीं था कि इससे पहले लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आते थे। लोग आते थे, लोगों ने अचीव किया है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप, और ये इंडस्ट्री ग्रो ही करते जाने वाली है। नहीं मैम, वो इंडस्ट्री साइज इसलिए डिस्कस कर रहा था कि उसमें जो ग्रोथ परसेंट है जिसका बेनिफिशियल हमें होगा ना, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन होगी। नहीं, इंडस्ट्री तो अभी मतलब टॉडलर्स इसमें ही है ना, तो अभी तो बड़ी होने की है, स्टैग्नेंसी कहाँ आई है? अभी तो स्टैग्नेंसी जब आएगी तब तुम ये ग्रोथ मॉडल देखोगे या इसका बिजनेस देखोगे। और फार्मा है, फार्मा से रिलेटेड कोई चीज आपने देखा होगा, फार्मा कभी भी खत्म नहीं होगा। एक बार आईटी खत्म हो जाएगा, आईटी का एआई हो जाएगा, बट फार्मा का एआई नहीं होगा। मतलब ड्रग जो है वो जैसे बन रहे हैं वो ठीक है, बनाने के तरीके या मशीनरीज अलग अलग होगी, बट बनने ही तो वाले ही है, यूज तो होगा ही। और नए नए डिसीज के लिए ट्रीटमेंट तो चाहिए, तो वो कैसे आएंगी मार्केट में? वो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स ही आएंगे। क्लिनिकल ट्रायल से आएंगे। थैंक यू मैम। इंडस्ट्री इज इन अ टॉडलर स्टेज, मतलब अभी बहुत बच्चा है, मतलब छोटा बेबी ही है। या थैंक यू मैम। या एनीबॉडी? सो होपिंग दैट आपको ये चीज समझ में आई है कि आपको नेटवर्किंग कैसे बनाना है। आप कभी भी थ्रू आउट द क्लास अपना कैमरा ऑफ नहीं रखोगे। आप जब मतलब क्लास खत्म हो जाती है या कंक्लूड हो जाती है तभी ही कैमरा बंद करोगे, तभी आप मीटिंग से निकलोगे। ये भी मत करना कि हाँ आपका नेटवर्क अनस्टेबल है और बार बार आप जा रहे हो आ रहे हो, ऐसे से आपका कोई लिंक नहीं जाएगा। और आज का जो मोटिव था क्लास लेने का, आपको ये अंडरस्टैंड करने का कि आपको इस क्लास से क्या लेना है, वो आपको सबको समझ में आ गया है। Ayushi, am I right? Can you understand whatever I want to like told you in last 1 hour?
बिकॉज बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और स्टूडेंट उस कंफ्यूजन में गलत डिसीजंस लेते हैं. सो अभी एक चीज समझ लो, आपका हर एक डिसीजन आपका करियर डिसाइड करने वाला है. सो आप अभी जो भी सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मतलब फोर्स नहीं कर रहा है, आप अपने मन से हर चीज कर रहे हो, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है अराउंड आपके जो है, आपने जो डिसीजंस लिए हैं उस डिसीजन बेसिस आपका फ्यूचर रहने वाला है. तो हर डिसीजन सोच समझ के बिना डरे लोगे, और उसका यूज कैसे करना है. आपने डिसीजन तो ले लिया क्लास करने का, बट क्लास ही अटेंड नहीं किया. ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, डिसीजंस तो ले लेते हैं, पैसे भी पे करते हैं, बट क्लास नहीं अटेंड किया. डू यू थिंक दैट कि उनको कुछ समझ में आएगा और उस क्लास करने का कोई मतलब है? इंटर्नशिप करते हैं बट इतनी मोनोटोनस करते हैं कि किसी से बात ही नहीं करते इंटर्नशिप, या जो बताया है लाइक सांका में, जैसे इधर से ये लाओ वो दो, ऐसी वाली अगर इंटर्नशिप करोगे, आपको समझना है, सीखना है, देखना है, हर चीज आपको ये करनी है. जितना आप अच्छे से अपने आप को देखोगे, समझोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. शुभम, आपको सारी चीजें समझ में आई क्लास की? Yes, ma'am. आपको ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, देन पंजाब, गुजरात से है, एंड ऑल लाइक वी आर कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ देम. दो भी लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं कभी मिली भी नहीं हूँ जो गुजरात और भुवनेश्वर वगैरह के लोग हैं, और इवन दो मोस्ट ऑफ नागपुर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मुझे नहीं लगता मैं बहुत मिलती हूँ. बट हाँ, हम मतलब ऑनलाइन ही इतने कनेक्टेड है कि हम लोगों ने उनको इंटर्नशिप भी दी है, उनको जॉब्स भी रेफर किए हैं, वो लोगों ने हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो लोग प्लेस भी है. लाइक जैसे मैंने पुणे का एग्जांपल इसलिए बताया था, एक एग्जांपल मैंने नागपुर के स्टूडेंट का दिया था, सुशील का, और एक पुणे का. उस लड़की को आज तक मैं नहीं मिली हूँ, बट वी आर इन टच इन टुडे ऑल्सो. तो इस तरह से आप इवन हमारे टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो. अगर आप यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल भी है. बहुत कम स्टूडेंट्स को ही हम मिल पाते क्योंकि बहुत सारे नागपुर के नहीं होते हैं. सो ये मिथ है कि ऑनलाइन कोर्सेस अच्छे नहीं होते हैं. आपके पास अभी जब क्लास शुरू हो जाएगा तो एक स्क्रीन पे आपको पीपीटी हम शेयर करेंगे, और वही आपके पास है बुक में. तो आपको आपका बुक खोल के बैठना है, और कल का जो टॉपिक है आपको पहले से थोड़ा सा रीड करके आना है. जो वर्ड्स आपको नहीं समझते आप उसके मीनिंग देख के आओगे. ओके, सबको चीजें समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, देन हैव अ नाइस डे. we are concluding today's session over here. See you tomorrow. तो tomorrow आपको गुरदत्त सर मिलेंगे. ओके, बाय. Thank you, ma'am.